Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. As we are going through our lesson of carbon and its compounds, और आज का जो टॉपिक है इट इज अबाउट नॉमेनक्लेचर. Nomenclature is a system of naming compounds. एक ऐसा निजाम जहां पे हम कंपाउंड्स को नाम देते हैं. इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं. And this nomenclature of compounds is of two types. One is common name and another is IUPAC or IUPAC. Common name. In this particular system of nomenclature, the name of the compound is given on the basis of its origin or from the source, on the basis of the source from which the said compound is obtained. For example, we have a compound with formula HCOOH. Its common name is formic acid. And why it is named as formic acid? Because its source is formicus, and this formicus is a Latin word which means red oats. Because the said compound is obtained from destructive distillation of red oats. That is why it is called as formic acid. Another is there acetic acid. CH3COOH. And why it is called as acetic acid? Because its source is acetum. Acetum means vinegar, because the 5% or some books state that 7% solution of this compound is used for the manufacture of vinegar. Butyric acid. Butyric acid. Why the compound is called as butyric acid? Because the chemical is obtained from butyrum. Butyrum means butter. It is obtained from butter. But there was a fault associated with this common system, that the said compounds were known by different names at different places of the world. Then there was a discussion among the chemists, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो सके, और उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया IUPAC और IUPAC. और इसका जो कन्वेंशन है ये जेनेवा में हुआ, पहली बार जेनेवा में हुआ. तो इस सिस्टम को हम इंटरनेशनल
union of pure and applied chemistry. The full form of it is International Union of Pure and Applied Chemistry. In short हम इसको IUPAC कहते हैं. तो उन्होंने जो ये कन्वेंशन की, उन्होंने जो ये डिस्कशन की, उसमें ये इस नतीजे पे पहुंचे कि जो भी कंपाउंड्स है उनका एक सिंगल नेम होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल, जो कि पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा सके. तो इस तरीके से उन्होंने किसी भी कंपाउंड के नाम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. तो पहला जो वर्ड है इसमें इसको हम वर्ड रूट कहते हैं. दूसरा जो है सफिक्स है, और इस सफिक्स को बाद में और 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया गया, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. और इसके बाद जो तीसरा इसमें है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं. वी विल डिस्कस ऑल दीज terms associated with this IUPAC system one by one. Number first is word root. This word root shows us the total number of carbon atoms in a molecule or in a compound. बेहतर यहां पे कंपाउंड है. Word root shows us the total number of carbon atoms in a compound or the total number of carbon atoms in a molecule. अगर कंपाउंड में फॉर एग्जाम्पल 1 कार्बन है, एटम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10 या 12 तक हो सकते हैं 10th और 12th लेवल के एग्जाम्स के लिए. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 10 से ज्यादा होंगे या 12 से ज्यादा होंगे, उनके लिए एक सेपरेट से लेक्चर मैं YouTube पे अपलोड करूंगा. तो उस वक्त आप मेरी जो चैनल है YouTube पे Z केमिस्ट्री, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर आप देख भी सकते हो. For the compounds having one carbon atom, सिंगल हम नहीं कह सकते, 1 कार्बन एटम, इसको हम क्या कहते हैं, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. For C11, undeck, bideck, trideck, tetradeck, pentadeck, and so on. This was about word root. Now there is another term associated with this IUPAC, that is suffix. जैसा कि मैंने आपको कहा कि suffix जो है, suffix is of 2 types. Suffix, one is primary suffix. This primary suffix, it shows the type of linkage between 2 carbon atoms in a compound. किसी भी कंपाउंड में जो
कार्बन एटम्स है उनके दरमियान लिंकेज कैसी है, वेदर द लिंकेज इज ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, टू कार्बन एटम्स, और वेदर द लिंकेज इज ए डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, और वेदर द लिंकेज इज ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। अगर ये लिंकेज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसके लिए हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एन। अगर ये लिंकेज डबल कोवलेंट बॉन्ड के तो उसके लिए हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन कहते हैं। और अगर ये लिंकेज दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की है तो हम इसको क्या कहते हैं, याइन कहते हैं, याइन। This primary suffix shows us the type of linkage between the two carbon atoms in a compound. अगर लिंकेज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के उसके लिए हम सफिक्स एन इस्तेमाल करते हैं, अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड के उसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, याइन इस्तेमाल करते हैं। Then there is another suffix that is called as secondary suffix. That's called as secondary suffix. Secondary suffix. Secondary suffix. It shows the presence of functional group in a compound. It shows the presence of functional group in a compound. यह हमें किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। प्राइमरी सफिक्स जो है, प्राइमरी सफिक्स हमें क्या करता था, वो हमें प्राइमरी सफिक्स जो है वो हमें क्या बताता था, वो हमें लिंकेज के बारे में बताता था। और जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है क्या। फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल लूंगा। दिस ए कंपाउंड मीथेन। हमें पता है कि इसको हम अल्केन भी कहते हैं, या इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, या हाइड्रोकार्बन सिंपली कहते हैं, या सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ये जो मीथेन है, इट इज बेसिकली अ गैस, इट इज फिजिकल स्टेट इज दैट इट इज अ गैस। जो एलपीजी है, जो सीएनजी है, या जो नेचुरल गैस है, उसमें मीथेन की प्रेजेंस होती है। या हम ये कहेंगे जो मीथेन है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फ्यूल के लिए। अगर इसमें हम एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से या किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करेंगे तो जो ये मीथेन है ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड। तो कंपाउंड किसकी वजह से बना, ये दूसरे एटम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा OH से, तो हम इसको मीथेन अब नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको कहेंगे ये एक अल्कोहल है, एंड इट इज ए वेरी स्ट्रेंज केमिकल। वो जो अल्कोहल ये बना, इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, मेथनॉल। पहले मीथेन था, इसके साथ हम डील कर सकते थे, हम इसको फ्यूल के
हम इसको यूज करते थे एज ए फ्यूल, एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल। अब क्या बना ये? अब ये मिथनॉल बना। नाउ वी आर नॉट एबल टू डील विद दिस कंपाउंड एज वी यूज्ड टू डू व्हेन द कंपाउंड वाज ए fuel or when compound was methane. Due to the presence of this group of atoms, there occurs a change in the chemical property of this compound. This is called as the functional group. और अगर हम अब इस functional group को define करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि functional group is an atom or a group of atom due to the presence of which any compound shows definite property, यानी जिनकी प्रेजेंस की वजह से कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है, ये कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कंपाउंड विल नाउ शो the properties of alcohol because it is now an alcohol. अगर हम यहीं पर इस कंपाउंड को किसी भी हेलोजन के साथ मिलाएंगे then it becomes methane chloride, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन, becomes a हेलो अल्केन। फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली वो कोई एटम है या वो कोई ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनकी वजह से किसी भी कंपाउंड में कुछ खुसूसियात पाई जाती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। लेकिन यहां पे जो टॉपिक हमारे पास, यहां पे हमें उतने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करना नहीं पड़ता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है OH। जिस किसी कंपाउंड में भी यह ग्रुप होगा उनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। तो IUPAC में उनके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है ऑल। अगर ये फंक्शनल ग्रुप CHO, इनको हम कहते हैं अल्डेहाइड्स, इनके लिए IUPAC में एक नाम है अल। एथेनल, प्रोपेनल, बुटेनल। अगर एक फंक्शनल ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इनके लिए एक नाम है ओइक एसिड। एक और ग्रुप भी है C+O, इनको हम कीटून्स कहते हैं। कीटून्स, द सिंपलेस्ट कीटून इज एस्टून। तो इनके लिए एक नाम है ऊन, प्रोपानून, ब्यूटानून, पेंटानून। ये ग्रुप ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स है। अल्काइल ग्रुप्स को हम यूजुअली R से डिनोट करते हैं। ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये मिथाइल हो सकता है। मिथाइल के अलावा जिसमें कार्बन चेन जो है वो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 होंगे तो इथाइल, 3 होंगे तो प्रोपाइल, अगर 4 होंगे तो ब्यूटाइल। ROR, यहां पे क्या है कि जो ऑक्सीजन है इट इज फ्लैंक्ड और इट इज इन बिटवीन 2 अल्काइल ग्रुप्स। इनको हम ईथर्स कहते हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल IUPAC में एक एंडिंग है। तो जो एंडिंग है ये ऑक्सी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको यहां पे नाम हम ऐसे लिखेंगे, अल्कोक्सी अल्केन या मिथॉक्सी। अगर यहां पर मिथाइल हो, यहां पर मिथॉक्सी मीथेन। इसके अलावा और भी है, इस्टर है,
एसिड क्लोराइड है, और कभी कभी जो हाइड्रोजन एटम्स है उनको हेलोजन्स ने रिप्लेस किया है, तो हम उनको हेलो अल्केन्स कहते हैं। हेलो के लिए हेलोजन्स, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोड। तो इसके बाद जो तीसरा इसमें जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है यहां पे एक पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बुक में अगर देखोगे जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर को जब भी हम डिस्कस करते हैं हम पहले वर्ड रूट को डिस्कस करते हैं, या अक्सर बेशतर जो भी आपके पास कोई भी बुक होगी या आप किसी भी माध्यम से किसी भी सोर्स से इस नॉमेनक्लेचर को पढ़ सकते हो, तो वहां पे पहले वर्ड रूट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सफिक्स को डिस्कस करते हैं, या उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को डिस्कस करते हैं, और प्रीफिक्स को लास्ट में डिस्कस करते हैं। प्रीफिक्स को यूजुअली लास्ट में डिस्कस करते हैं। मगर जब हम नॉमेनक्लेचर को किसी भी कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को नोट करते हैं, किसी भी कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को जब हम नोट करते हैं तो हमें एक बात को जानना जरूरी है। हमें एक बात को जानना जरूरी है कि जब हम नाम लिखेंगे सबसे पहले हम प्रीफिक्स का जिक्र करते हैं, उसके बाद हम वर्ड रूट पे जाते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स पे जाते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी सफिक्स पे जाते हैं। जो प्रीफिक्स है, जस्ट लाइक सफिक्स, इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स एंड अनदर इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे पास जो कल हमने देखा जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी साइक्लिक एंड इट कैन आल्सो बी एसाइक्लिक। इट कैन बी साइक्लिक, इट कैन बी एसाइक्लिक। जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या करता है? इट शोज वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं यहां पे दो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास ब्यूटेन है, लेकिन ब्यूटेन को मैं दो तरीकों में दिखाऊंगा, CH3, CH2 एंड CH3। इसी ब्यूटेन को मैं CH2 इसमें भी 4 कार्बन एटम, इसमें भी 4 कार्बन एटम्स है, साइक्लिक और एसाइक्लिक। जो ये ब्यूटेन है, इसमें क्या है, जो कार्बन एटम्स है ये दे आर लिंक्ड इन चेन्स, और दे आर लिंक्ड लीनियरली, और दे आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। इस कंपाउंड को हम यूजुअली क्या कहते हैं? एसाइक्लिक कहते हैं। इट इज एन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर जो बना है ये क्लोज्ड नहीं है। जो इसमें स्ट्रक्चर है ये क्लोज्ड है, इट्स ए क्लोज्ड स्ट्रक्चर। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको हम एसाइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये हमें यही बताता है कि कंपाउंड जो है ये साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है या ये ओपन स्ट्रक्चर है। अगर ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो हम क्या करते हैं, हम इस कंपाउंड को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रीफिक्स को हम नॉमेनक्लेचर में पहले लिखते हैं, तो हम पहले इस कंपाउंड को ऐसे लिखते हैं साइक्लो। साइक्लो क्या है यहां पे, इट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके बाद हम वर्ड रूट पर आएंगे। इसके बाद मैंने आपको कहा कि वर्ड रूट को हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है प्राइमरी सफिक्स को, इसके बाद हमें लिखना पड़ता है सेकेंडरी सफिक्स को। साइक्लो, इसके बाद कितने कार्बन एटम हैं, 4 ब्यूट। कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो ब्यूटेन। दिस साइक्लो इज प्राइमरी प्रीफिक्स। और अगर कंपाउंड साइक्लिक है, इसके लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स को, इसके लिए हम प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ये कंपाउंड है ये साइक्लिक नहीं है, और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एसाइक्लिक। या अगर हम इसका भी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो हम लिखेंगे इट इज ब्यूट 1 2 3 4, और कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद नहीं है। या अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दे आर, इनको जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे इनको हम आइसोमर्स भी कहते हैं। तो इस आइसोमर को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इट इज ए नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। और इसको हम सीधे यहां पे क्या लिखते हैं, इट इज ए साइक्लो ब्यूटेन। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स था। इसके बाद नेक्स्ट इज सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। secondary, yes, secondary prefix. कभी कभार किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के अलावा, फंक्शनल ग्रुप के बगैर अनदर सेट ऑफ या अनदर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। बाकी एक एटम्स का एक ग्रुप होता है, उन ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, सबस्टेंट्स कहते हैं, सबस्टेंट्स। जो सेकेंडरी सफिक्स है ये बेसिकली हमें उन्हीं सबस्टेंट्स के बारे में बताता है। वो हम ऐसा कहेंगे कि सेकेंडरी सफिक्स इट शोज अस अबाउट द ग्रुप्स अदर देन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, कि अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के बगैर कोई और ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सबस्टेंट। दैट दिस सेकेंडरी प्रीफिक्स शोज अस दिस सेकेंडरी प्रीफिक्स शोज अस द presence of substance या presence of group of atoms other than the functional group in the compound. This is called as secondary prefix. Secondary prefix. So this was about the about the IUPAC system of nomenclature. तो IUPAC system में क्या क्या parts है, तो word root है, इसमें सफिक्स है प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स, इसमें प्रीफिक्स है प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इस नॉमेनक्लेचर को जानने के लिए कुछ रूल्स है। जो रूल्स है, रूल्स देयर इज ए सेट ऑफ रूल्स
मगर 10th क्लास के लिए जो ये रूल्स है, या 10th क्लास के लिए जो 10th क्लास के लिए जो सेट ऑफ रूल्स है, वो सभी सेट एक्चुअली कवर नहीं होते हैं। उसमें कुछ रूल्स कवर होते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें रूल है, यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम यूजुअली ये जो रूल्स है नॉमेनक्लेचर के लिए, देयर इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहला जो रूल है, इसमें हम देयर इज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, दो कंपाउंड्स है हमारे पास। हमारे पास दो कंपाउंड है। इस रूल के हिसाब से हमें उस कंपाउंड को सिलेक्ट करना है नॉमेनक्लेचर के लिए। उस कंपाउंड को हमें सिलेक्ट करना है नॉमेनक्लेचर के लिए जिसमें कि जो कार्बन चेन है ये सबसे ज्यादा, इसमें जो कार्बन एटम्स है वो सबसे ज्यादा होंगे। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इस चेन को, अगर इस चेन के साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स भी अटैच होंगे जो कि सबस्टेंट होंगे, तो इस चेन को हम पेरेंट चेन कहते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा रूल है इसमें, जो दूसरा रूल है कि अगर फर्स्ट रूल इज द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर इस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप कहीं पे है, तो फंक्शनल ग्रुप को हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें उसको लोकेट करना है, या उसके लिए लोकेशन के लिए हमें क्या करनी है, हमें एक्चुअली नंबरिंग करनी। और नंबरिंग हमेशा उस साइड में होनी चाहिए ताकि इस फंक्शनल ग्रुप को क्या हो, इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ये कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड यहां पे तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो दोनों जो कंपाउंड्स है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5 है। तो ये चेन है, इट विल बी द longest possible chain. Here it will be the longest possible chain. तो अगर हमें दोनों कंपाउंड्स को नाम देना होगा IUP के हिसाब से,
तो हम क्या करेंगे, हम इस चेन को नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहां पे कौन है, OH है, OH है, ऑल ग्रुप है, यहां अल्कोहलिक ग्रुप है, यानी ये अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या, इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो इसको 4 यहां पे मिला। अगर हम यहां से स्टार्ट करें एक साइड से, अगर यहां से करेंगे तो इसको कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो हमें नंबरिंग हमेशा उस साइड से करनी है जहां पे इस फंक्शनल ग्रुप को क्या, इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इस केस में अगर हम इस साइड में जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको 3 मिलेगा यहां पे नंबर। अगर इस साइड में जाएंगे फिर भी इसको 3 मिलेगा। तो इसके लिए केस जो है वो सेम है। तो जब भी हमें फंक्शनल ग्रुप को लोकेट करना होगा कंपाउंड में, उसके लिए हम नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग हमेशा हम उस साइड में देंगे जिस साइड में जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या, इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब अगर ऐसा मामला है कि कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के अलावा अनदर ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सबस्टेंट है, तो हम ऐसा करते हैं कि नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले और सबस्टेंट को हाईएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो ये कुछ ऐसे रूल्स है जो कि IUPAC ने सेट किए हैं, किसके लिए, फॉर द नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और फॉर द नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इस लेसन में आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ रूल्स के साथ कुछ कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक इट इज गुड बाय फ्रॉम माय साइड।